السلام علیکم ناظرین، استقبال ہے آپ کا زبیر ایجوکیٹر چینل پر۔ میں زبیر احمد فاض۔ ناظرین آئیے آج میں آپ کے لیے موضوع نمبر 6 زبان کی تدریس کے مسائل، چیلنجز آف لینگویج ٹیچنگ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ ناظرین آج کے اس لیسن میں ہم زبان کی تدریس کے مسائل کو مکمل وضاحت اور مثالوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، معروضی سوالات کی شکل میں۔ آپ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو زبان کی تدریس کے مسائل پر جتنے بھی سوالات ایگزام میں پوچھے جائیں گے آپ بآسانی اسے حل کر سکیں گے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، کثیر لسانیت ملٹی لنگویلزم کو کلاس روم میں ایک وسیلہ ریسورس کے طور پر استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو کثیر لسانیت کیا ہوتا ہے ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ دیکھیے کثیر کا مراد ہوتا ہے زیادتی، لسانیت لسان سے مراد ہے زبان۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے لفظی معنی اس کے، زبان یعنی زیادہ زبان۔ تو مطلب اس کو سمجھنے اس طرح سمجھیں گے کہ دیکھیے جب کوئی بچہ یا کوئی فرد 2 سے زائد زبانیں سمجھتا ہو، بولتا ہو، پڑھتا ہو یا لکھتا ہو تو اسے کثیر لسانیت کہتے ہیں۔ اب دیکھیں ناظرین، جیسے کہ مثال کے طور پر یہ بچے کے سب سے پہلے تو میں بتاؤں کثیر لسانیت کے فائدے۔ یہ بچے کی سوچنے کی صلاحیت، سمجھنے کی طاقت، نئی زبان سیکھنے کی اہلیت کو بڑھاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک بچہ گھر میں اردو بولتا ہے، محلے میں ہندی اور اسکول میں انگریزی پڑھتا ہے، تو یہ بچہ کثیر لسانی ہے۔ تو امید ہے آپ کثیر لسانیت کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ آئیے آپشنز دیکھتے ہیں۔ آپشن 1، بچے کی مادری زبان کا استعمال کرتے ہوئے تدریس کے عمل کو آگے بڑھانا۔ آپشن بی، بچوں کو بہت سی غیر ملکی زبانیں سکھانا۔ آپشن سی، کلاس روم میں صرف ہندی اور انگریزی کا استعمال کرنا۔ آپشن ڈی، بچوں کی مادری زبان کو نظر انداز کر کے ہدف زبان سکھانا۔ تو دیکھیں کتنا آسان ہو گیا اس کا جواب۔ ناظرین اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1۔ آپشن نمبر 1، بچوں کی مادری زبان کا استعمال کرتے ہوئے تدریسی عمل کو آگے بڑھانا، یعنی کلاس روم کے لیے پوچھا گیا ہے۔ کلاس روم میں ایک وسیلے کے طور پہ کیسے استعمال کریں گے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی مادری زبان کا استعمال کرتے ہوئے تدریسی عمل کو آگے بڑھانا۔ دیکھیں ناظرین، کثیر لسانیت بطور وسیلے کا مطلب ہے کہ بچوں کے گھریلو زبان کو کلاس میں اہمیت دی جائے، عزت دی جائے اور اسے سیکھنے کی بنیاد بنایا جائے۔ ابھی این-ای-پی میں بھی یہی کہا گیا، جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے نہیں، کہ بچوں کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ مادری زبان میں ہو تو بہتر ہے، کیونکہ مادری زبان کی وجہ سے ان کا اکتساب بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاؤں، استاد پانی کے بارے میں پڑھاتے ہوئے بچوں سے پوچھتا ہے کہ بھئی اپنی زبان میں بتاؤ کہ پانی کو اور کیا کہتے ہیں تمہارے پاس، یا کوئی اور بھی مثال لے سکتے ہیں ناظرین۔ آئیے دیگر متبادل کے بارے میں بتاتے چلوں۔ آپشن نمبر بی میں کہا گیا کہ بچوں کو بہت سی غیر ملکی زبانیں سکھانا۔ جی نہیں، یہ غیر ملکی زبانوں کی تدریس یہ وسیلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپشن نمبر سی، کلاس روم میں صرف ہندی اور انگریزی کا استعمال کرنا، یہ صرف ذو لسانی ہے، بائی لینگول طریقہ ہے، کثیر لسانی نہیں ہے۔ کثیر میں ہے نا 2 سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اور آپشن ڈی میں کہا گیا کہ بچوں کی مادری زبان کو نظر انداز کر کے حذف زبان سکھانا۔ حذف زبان سے مراد ہے ٹارگیٹڈ لینگویج، یعنی اس میں کہا جا رہا ہے کہ بچوں کو مادری زبان کو نظر انداز کر دینا۔ جی نہیں، دیکھیے مادری زبان کو نظر انداز کرنا بچے کی شناخت کو ختم کرنے کے برابر ہے۔ آئیے اگلا سوال سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سوال نمبر 2، ہندوستانی آئین کے کس آرٹیکل کے تحت اقلیتی بچوں کو ابتدائی تعلیم ان کی مادری زبان میں فراہم کرنے کی بات کہی گئی؟ دیکھیے حکومت ہند کے جو آئین ہے اس میں آرٹیکل بتانا ہے ہمیں، وہ کون سا آرٹیکل ہے جس میں مائنورٹیز کے بچوں کو، اقلیتی بچوں کو ابتدائی پرائمری ایجوکیشن میں مادری زبان میں فراہم کیا جائے، اس کی بات کہی گئی۔ تو ناظرین اس کا صحیح جواب ہے آرٹیکل اے 350۔ آپشن بی اس کا صحیح ہوگا، آرٹیکل اے 350۔ جی ہاں، کے مطابق دیکھیے آئین کے مطابق اے 350 کے مطابق ریاستوں کو لسانی اقلیتوں کے بچوں کو، یعنی
ज़बान की जो अक़लियती माइनॉरिटीज़ बच्चे हैं उनको प्राइमरी सतह पर मादरी ज़बान में तालीम देनी चाहिए, ऐसा कहा गया। याद रखिएगा इस आर्टिकल के तहत माइनॉरिटीज़ के लिए, याद रखिए जी। उसके बाद देखिए ऑप्शन ए में है आर्टिकल 343। असल में ये हिंदी को मरकज़ की सरकारी ज़बान करार देता है। याद रखिएगा ए वाला जो है हिंदी लैंग्वेज के लिए है, ये मरकज़ी ज़बान के इसको सरकारी ज़बान करार देता है। ऑप्शन ए हिंदी के लिए, याद रखिए ये हिंदी के लिए है। उसके बाद ऑप्शन बी तो मैंने कहा आपको अक़लियतों के लिए। ऑप्शन सी आर्टिकल 351 ये हिंदी ज़बान के फ़रोग़ और तरक्की के लिए है। जी हाँ, आर्टिकल ये हिंदी ज़बान की तरक्की और फ़रोग़ के लिए। और उसके बाद जो आर्टिकल 345 है नाज़रीन, वो रियासत की सरकारी ज़बानों के इंतख़ाब से मुतल्लुक़ है। यानी स्टेट की जो सरकारी ज़बानों के इंतख़ाब के मुताल्लिक़ है। हर रियासत अपनी अलग अलग ज़बान है बहुत सी जगहों पर हमारे इंडिया में। तो आप समझ गए होंगे नाज़रीन। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, अगर तालिब इल्म को पढ़ने में दुश्वारी हो रही है, हुर्फ़ की पहचान मुश्किल है और वो वाज़ को 100 पढ़ता है, इधर से पढ़ेंगे, वाज़ को 100 पढ़ता है, तो वो किस आर्ज़े का शिकार है? अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने ये मिसाल देकर ही समझाया था। आप बआसानी उसका सवाल का जवाब देंगे अगर आप मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। दुश्वारियों के बारे में मैंने पूरी तफसील से मालूमात दी है। तो इसका सही और एकदम आसान, ये पढ़ने के मुताल्लिक़ दुश्वारी, और पढ़ने से मुताल्लिक़ दुश्वारी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है नाज़रीन? डिस्लेक्सिया कहलाती है, सिंपल। जी हाँ, डिस्लेक्सिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इसमें बच्चे को पढ़ने, हिज्जे करने और हुर्फ़ को पहचान में दुश्वारी होती है। जैसे बच्चा मिसाल के तौर पर SGOD गॉड को DOG उल्टा पढ़ सकता है, या WAS वास को SAW भी पढ़ता है। अब देखो दिगर मुतबादिल है, पहले नंबर पे डिस्ग्राफिया। नाजरीन ये लिखने की दुश्वारी है जिसमें हाथ का तवाज़ुन नहीं रहता बराबर से। जी हाँ, मैंने पिछले वीडियो में तफसील बताई है इसकी, आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी डिसकैलकुलिया, देखिए ये भी बहुत आसान है, ये रियाजी के हिसाब के दुश्वारी के मुताबिक है। और आखिर में जो दे दिया डी में अफीज़िया, ये तो बोलने और समझने की दुश्वारी है, ये बोलने से मुराद है, ऑप्शन डी। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, से लिसानी फार्मूला 3 लैंग्वेज फार्मूला के मुताबिक पहली ज़बान कौन सी होनी चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है नाजरीन। इस तरह के सवाल इम्तिहान में पूछे जाते हैं। आप साबिक़ पर्चा ज़रूर देखिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरह के सवाल आते हैं। से लिसानी फार्मूला 3 लैंग्वेज फार्मूला के मुताबिक पहली ज़बान कौन सी होनी चाहिए? इसके मुताबिक देखिए नाजरीन, ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेज़ी, ऑप्शन सी मादरी ज़बान और इलाक़ाई ज़बान, ऑप्शन डी कोई भी जदीद हिंदुस्तानी ज़बान। तो देखें इसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मादरी ज़बान या इलाक़ाई ज़बान। मादरी ज़बान या इलाक़ाई ज़बान, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, क्योंकि 1968 की जो पॉलिसी थी वो से लिसानी फार्मूले के तहत पहली ज़बान हमेशा बच्चे की मादरी ज़बान या इलाक़ाई ज़बान होना चाहिए, उन्होंने उस पॉलिसी में कहा था। 1968 वाली पॉलिसी में, 1968 वाली, याद रखिएगा ये। उसके बाद दीगर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हिंदी जो है ये गैर हिंदी रियासतों में ये दूसरी या तीसरी ज़बान होती है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में पहली हमारी ज़बान है मराठी, क्योंकि हमारी मादरी ज़बान है, माफ़ कीजिएगा मादरी नहीं है, इलाक़ाई ज़बान है हमारी, और कुछ लोगों की ये मादरी ज़बान भी है। जी हम उर्दू, हमारी मादरी ज़बान उर्दू है, लेकिन हमारी इलाक़ाई ज़बान मराठी है। इसीलिए हिंदी जो है, कई ऐसी रियासतें हैं हमारे जहाँ पर ये दूसरी या तीसरी ज़बान होती है, जैसे कि हमारा महाराष्ट्र दूसरी ज़बान है, और अंग्रेज़ी जो है ये उमूमी दूसरी या तीसरी ज़बान होती है। जी हाँ, हमारे पास अंग्रेज़ी थर्ड लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल होती है स्कूल में, स्कूली सतह पे। जी हाँ नाज़रीन, और जो डी है कोई भी जदीद हिंदी ज़बान, असल में ये तीसरी ज़बान के ज़िम्मे में ही आती है। कोई जदीद ज़बान मतलब तीसरी ज़बान होगी, वो अंग्रेज़ी कहलाएगी ज़्यादातर। आइए आगे बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 5, हावर्ड गार्डनर की तकसीरी जहानत के नज़रिए के मुताबिक शायरों, अदीबों और सहाफ़ियों में कौन सी जहानत पाई जाती है? ऑप्शन ए मंतक़ी रियाज़ती जहानत, ऑप्शन बी मौसीकी जहानत, ऑप्शन सी लिसानी जहानत, ऑप्शन डी मकानी जहानत। इसका सही होगा लिसानी जहानत, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि जिन लोगों में अल्फाज, ज़बान और बयान पर खुदरत हासिल होती है, उनको कमांड हासिल होता है नाज़रीन। ऐसे लोगों को, जिसमें शायर शामिल है, अदीब है, सहाफ़ी है, इसलिए उनको उस पर कमांड हासिल होता है, इसीलिए इसमें लिसानी जहानत कहा गया है। मिसाल के तौर पर अल्लामा इक़बाल, डॉक्टर अल्लामा इक़बाल शायर या कोई बेहतरीन मुक़र्रर जिनको बहुत कमांड हासिल था, माशाअल्लाह। आइए दीगर ऑप्शन समझते हैं। ऑप्शन ए देखें, मुंतक़ी, ये साइंसदान और रियाज़ीदान के लिए होता है। ये जो पहला ऑप्शन है ना, ये साइंसदान और रियाज़ती यानी लॉजिकल मैथमेटिशियन कह सकते हैं। उसके बाद बी में देखें मौसीकी जहानत, तो आप समझ गए होंगे मौसीकी कौन होता है, गुलकार होगा और मौसीकार होगा, म्यूजिशियन होगा और सिंगर्स कहलाएंगे, इसमें माफ़ कीजिएगा। ऑप्शन डी देखिए मकानी जहानत, ये मुसव्विर और नक्शा नवीस के लिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन डी, इसके बारे में भी सवाल पूछे गए हैं। मकानी जहानत स्पेशल इंटेलिजेंस यानी मुसव्विर और नक्शा नवीस के लिए ये होती है। उम्मीद करता हूँ कि चारों भी आपको समझ में आए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, हिंदुस्तानी आइन और 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत अंग्रेज़ी ज़बान को क्या दर्जा हासिल है? ऑप्शन ए कौमी ज़बान, ऑप्शन बी सरकारी ज़बान, ऑप्शन सी माविन सरकारी ज़बान, ऑप्शन डी गैर मुल्की ज़बान। देखिए नेशनल लैंग्वेज तो जी नहीं, हिंदी है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकारी ज़बान भी, देखिए इसको सरकारी ज़बान भी नहीं कहा गया, हिंदी है हमारे पास। और उसके बाद देखें माविन सरकारी ज़बान, हाँ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इसको माना गया। जी हाँ, एसोसिएट ऑफिशियल का दर्जा मिला 1963 के एक्ट के तहत। नाजरीन 1963 के एक्ट के तहत अंग्रेज़ी को हिंदी के साथ, हिंदी के साथ दफ्तरी कामों के लिए माविन ज़बान का दर्जा दिया गया। जी हाँ, यानी हिंदी के साथ साथ इसे भी दर्जा दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे, दफ्तरी ज़बान। अब दिगर जो है कौमी ज़बान तो देखिए आइन में कोई कौमी ज़बान नहीं है, सिर्फ सरकारी ज़बानें हैं, हमारे आइन में नहीं है, दर्ज नहीं है। उसके बाद सरकारी ज़बान जो है, लेकिन हमारी सरकारी ज़बान जो है ये दर्जा हिंदी को हासिल है, ऑप्शन बी में। और डी में देखें गैर मुल्की ज़बान, ये आइनी दर्जा नहीं है नाजरीन। ये एक असलियत है कि ये आइनी दर्जा हासिल नहीं है गैर मुल्की ज़बान को। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, डिस्ग्राफिया का ताल्लुक़ किस किस्म की महारतों में दुश्वारी से है? डिस्ग्राफिया लिखने से, जाहिर सी बात है नाज़रीन। ऑप्शन ए पढ़ने की महारत, ऑप्शन बी लिखने की महारत, ऑप्शन सी बोलने की महारत, ऑप्शन डी सुनने की महारत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लिखने की महारत से। क्योंकि इस आर्जे में बच्चे को पेंसिल पकड़ने, हुर्फ की बनावट में मुश्किल होती है, जिससे उसकी राइटिंग ख़राब हो जाती है, तहरीर ख़राब हो जाती है। मतलब बच्चा लाइन पर सीधा नहीं लिख पाता और हुर्फ की शक्ल बिगड़ जाती है, इसलिए। और दिगर मुतबादिल आप जानते हैं, पढ़ने के लिए डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी में बोलने के लिए एजेफिया, अफीजिया माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन डी है सुनने की महारत के लिए समात का मसला है भाई ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। शमूलियाती तालीम बहुत ही इम्पोर्टेंट नुक्ता है नाजरीन, ये शमूलियाती तालीम, इनक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। ये आप चाहे उर्दू में पढ़ लें, हिंदी में पढ़ लें या कोई और पेडिगोजिकल सेक्शन पढ़ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चाहे पर्चा अव्वल हो, पर्चा दुव्वम हो। का बुनियादी फ़लसफ़ा क्या है पूछा गया। ऑप्शन ए खुसूसी बच्चों के लिए अलग स्कूल बनाना, ऑप्शन बी तमाम बच्चों को बिला तफरीक नॉर्मल और माजूर को एक ही स्कूल में तालीम देना, ऑप्शन सी सिर्फ ज़हीन बच्चों का दाखिला लेना, ऑप्शन डी माजूर बच्चों को सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग देना। देखिए इसका बहुत ही आसान जवाब है शमूलियाती तालीम। देखो उसमें पढ़ने में ही समझ में आ जाए, शमूलियत यानी शामिल करना, यानी देखिए ना तमाम तलबा को बिला तफरीक या नॉर्मल हो या माजूर हो एक ही स्कूल में तालीम देना, इसका एक बुनियादी फ़लसफ़ा है नाज़रीन। याद रखिएगा आप, सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि ये निज़ाम कहता है कि तालीम निज़ाम बच्चों के मुताबिक बदलना चाहिए और सबको एक ही छत तले तालीम मिलनी चाहिए। सिंपल इनका फंडा है। उसके बाद ए में देखें अलग स्कूल, खुसूसी बच्चों के लिए अलग स्कूल।
जी नहीं, ये फिगरेशन है, ये शमूलियत नहीं है। आइए इसके बाद है ऑप्शन सी, सिर्फ ज़हीन बच्चों को दाखिला देना। जी नहीं, ये सही सोच नहीं है। उसके बाद ऑप्शन डी, सिर्फ वोकेशनल, ये मरकज़ी इदारे की तालीम है जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं आएगी। आइए उसके बाद देखें, शमूलियाती तालीम में नहीं आएगी नाज़रीन। उसके बाद सवाल नंबर 9, ज़बान की क्लास में बच्चों की तरफ से की जाने वाली गलतियां, एरर्स किस चीज़ की निशानदाही करते हैं? देखिए, ऑप्शन ए है बच्चों को लापरवाही की, ऑप्शन बी असातिज़ा की नाकामी की, ऑप्शन सी आमूजिश का हिस्सा है और बसीरत फराहम करती है, ऑप्शन डी बच्चे को सज़ा देने की ज़रूरत है। जी हाँ, देखिए, बच्चे गलतियाँ करके ही सीखते हैं, हमने नफ्सियात में पढ़ा था। सवाल नंबर 9 का जवाब सही होगा ऑप्शन नंबर सी, आमूजिश, यानी सीखने का एक हिस्सा है, बच्चे गलतियां करके ही सीखते हैं नाजरीन। अब इसको देखें, गलतियां ये बताती है कि बच्चा कैसे सोच रहा है। बच्चा वक्त के साथ खुद की इस्लाह कर लेता है। अब मिसाल के तौर पे बच्चा कहे कि मैंने खाना खाया की जगह मैंने खाना खाई बोले तो ये सीखने के अमल की दुश्वारी हो गई, है ना, मतलब वो सीख नहीं पाया सही से। अब ऑप्शन ए और बी जो है तो गलतियों को लापरवाही या नाकामी समझना पुरानी और मनफी सोच है ये। जी नहीं, ये पुरानी सोच है, असातिज़ा की नाकामी, बच्चों की लापरवाही। और ऑप्शन डी देखें, बच्चों को सज़ा देने की ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं, सज़ा देना तो सबसे बड़ा जुर्म है। इसके ऊपर हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से भी एक GR कुछ दिन पहले नाफिज हुआ, आपने देखा होगा, और इस अमल को रोक दिया गया है। बिल्कुल भी सज़ा देना नहीं है। जी आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, आईन हिंद के 8वें शेड्यूल में कितनी ज़बानों को तस्लीम किया गया? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 15। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी, 22 ज़बानों को। याद रखिएगा, ये 8 शेड्यूल में ये सवाल आया हुआ है एग्ज़ाम में। 22 ज़बानों को दर्जा दिया गया है, जिसमें हमारी उर्दू ज़बान भी शामिल है, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं। और जो दिगल मुतबादिल है वो भी बता दूं, जो ए है 18, तो ये 2003 से पहले की तादाद थी, और उसके बाद जो 15 है डी में, वो ये इब्तिदाई दौर में 1950 के करीब की तादाद है, बाद में धीरे धीरे बढ़ती चली गई। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, असातिज़ा कसीर लिसानी क्लासरूम में तलबा के ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफे के लिए क्या हिकमत अमली अपना सकते हैं? कसीर लिसानी क्लास, जैसे कि मैंने कहा, यानी 2 से ज़्यादा ज़बानें, जैसे उर्दू, हिंदी, मराठी या कोई और ज़बानें के क्लासरूम में तलबा के ज़ख़ीरे अल्फाज के लिए क्या कर सकते हैं असातिज़ा? आइए ऑप्शन समझते हैं। तलबा को एक दूसरे के ज़बान के अल्फाज सीखने और बोलने की तरगीब देकर, ऑप्शन बी सिर्फ लुग़त याद करवा कर, ऑप्शन सी क्लास में बातचीत पर पाबंदी लगाकर, ऑप्शन डी सिर्फ मुश्किल अल्फाज की फहरिस्त देकर। तो देखें, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तलबा का बाहमी तबादला। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, तलबा को एक दूसरे के ज़बान के अल्फाज सीखने और बोलने की तरगीब देना, ये कहलाएगा तलबा का बाहमी तबादला। जैसे कि समझेंगे इसको, कसीर लिसानी की क्लास में जब बच्चा एक दूसरे के अल्फाज सुनते और बोलते हैं तो उनके जो ज़ख़ीरे अल्फाज है वो बढ़ते चले जाते हैं, सिंपल। ऑप्शन बी जो देखें, लुग़त याद करना, ये रट्टा है, समझ नहीं है। और ऑप्शन सी में और डी में बातचीत पर पाबंदी या सिर्फ फहरिस्त देना, ये गैर फितरी तरीक़ा है। आए आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। सवाल नंबर 12, डिस्कैलकुलिया किस मज़मून में दुश्वारी के नाम है? देखिए, ये रियाजी से मुराद है नाज़रीन, जैसे कि पहले हमने समझा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। ये हिसाब किताब, जमा तख़वीक के वक्त तस्वुरात समझने में रुकावट होती है। जी हाँ, और बाकी जो ऑप्शन है अंग्रेज़ी, साइंस, समाजी उलूम का ताल्लुक़ ज़बान और नज़रियात से है। जी हाँ, आइए सवाल नंबर 13 समझेंगे। माफ़ कीजिएगा, तकसीरी जहानत के नज़रिए में मकानी जहानत किन अफराद में ज़्यादा होती है? जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि स्पेशल इंटेलिजेंस जो है ये मुसव्विर, आर्किटेक्ट और इंजीनियर में होती है नाज़रीन। जी हाँ, सवाल नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर। और जो ऑप्शन नंबर है सियासतदान, देखिए उसके बारे में बता दूं, इन लोगों को समझने की जहानत होती है,
इंटरपर्सनल जिसको बोलेंगे। और ऑप्शन बी मौसीकार, ये संगीत की जहानत है जी, संगीत की जहानत है ये। ऑप्शन डी खिलाड़ी, ये जिस्मानी जहानत हो गई। आइए उसके बाद ऑप्शन माफ़ कीजिएगा, सवाल नंबर 14 से लिसानी फार्मूले के मुताबिक गैर हिंदी बोलने वाली रियासतें जैसे तमिलनाडु में दूसरी ज़बान कौन सी होनी चाहिए। देखिए तमिलनाडु में पहली लैंग्वेज, पहले ऑप्शन समझ लेते हैं। ऑप्शन ए कोई भी यूरोपीय ज़बान, ऑप्शन बी हिंदी या अंग्रेज़ी, ऑप्शन सी सिर्फ संस्कृत, ऑप्शन डी पंजाबी। तो देखें सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हिंदी या अंग्रेज़ी। हिंदी या अंग्रेज़ी होने चाहिए, क्योंकि गैर हिंदी रियासतों में दूसरी ज़बान हिंदी, कौमी राब्ते के लिए अंग्रेज़ी हो सकती है। जी हाँ, और वहाँ तमिलनाडु में ग़ालिबन कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है वहाँ की पहली लैंग्वेज तमिल या तेलुगु हो जी। और ऑप्शन ए में दिया गया है से लिसानी फार्मूले का हिस्सा नहीं है जी, यूरोपीय ज़बान से लिसानी फार्मूले का हिस्सा नहीं है। और सी में जो संस्कृत दिया गया है ये क्लासिकल ज़बान है, लाजमी दूसरी ज़बान नहीं कहा गया संस्कृत को। और पंजाबी ज़बान है ये इलाक़ाई ज़बान है, अब पंजाब में ये पहली लैंग्वेज होगी, इलाक़ाई ज़बान फर्स्ट लैंग्वेज पंजाब रियासत के लिए। आइए उसके बाद सवाल नंबर 15 समझेंगे, वो कौन सी जहानत है जिसका ताल्लुक़ अपने जिस्म की हरकत, तवाज़ुन और लचक से होता है। कौन सी जहानत है, सवाल नंबर 15 में पूछा गया, तो वो जिस्मानी हर की जहानत होगी, सिंपल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। और ऑप्शन ए को समझते हैं फितरी, फितरी बोला तो ये खुदरत से निकला हुआ होगा, खुदरत से लगाव जिसको कहेंगे। ऑप्शन सी में देखिए लिसानी जहानत, ये ज़बान दानी से मुराद है, लिसान यानी ज़बान। ऑप्शन डी वजदिया जहानत, यानी ज़िंदगी और मौत के फ़लसफ़ियाना सवालात होंगे इसके अंदर, उसको बोलते हैं। और सवाल नंबर 16 आईन हिंद का आर्टिकल 351 किस चीज़ की हिदायत देता है। कुछ देर पहले ही बताया नाज़रीन मैंने, ये हिंदी ज़बान को फ़रोग़ देता है नाज़रीन। ऑप्शन नंबर तशहीर को फ़रोग़ देता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। जी हाँ, हिंदी ज़बान को फ़रोग़ देता है, क्योंकि मरकज़ की ज़िम्मेदारी है कि वो हिंदी को फ़रोग़ दे ताकि हिंदुस्तान के मुश्तरका कल्चर का ज़रिया बने। और अंग्रेज़ी, संस्कृत या उर्दू के लिए ये आर्टिकल मखसूस नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 डिस्पेक्सिया या अप्रेक्सिया का ताल्लुक़ किससे है। ऑप्शन ए आंखों की कमज़ोरी से, ऑप्शन बी हर की महारतों और पट्ठों के तालमेल से, पट्ठों के से मुराद है नाज़रीन मसल्स को कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी समाजी ताल्लुकात से, ऑप्शन डी हिसाब किताब से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हर की महारतों से, डिस्पेक्सिया, क्योंकि इसमें दिमाग और पट्ठों का रब्त मुतासिर होता है मसल्स का। बच्चा या बटन लगाने या जूते का लेस बांधने में मुश्किल महसूस करता है। ए में जो दिया है आंखों की कमज़ोरी, ये बसारत का मसला है। और सी में जो दिया है समाजी ताल्लुकात, ये ऑटिज़म वगैरह जो है। ऑप्शन डी में देखें हिसाब, ये डिसकैलकुलिया का हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18 हावर्ड गार्डनर के मुताबिक दूसरों के रवैयों, जज्बात और महरक़ात को समझने की सलाहियत क्या कहलाती है। ऑप्शन ए बैनुल अफरादी जहानत, ऑप्शन बी इंटरपर्सनल जहानत, ऑप्शन सी मुंतक़ी जहानत, ऑप्शन डी खुदरती जहानत। सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बैनुल अफरादी जहानत कहलाएगी। जी हाँ, क्योंकि दूसरों की जज्बात, रवैयों और नीयतों को समझने की सलाहियत जैसे लीडर, उस्ताद या फिर माहिर नफ्सियात इसमें आ सकते हैं। ऑप्शन बी में इंटरपर्सनल जहानत, ये जो है ख़ुद अपनी ज़ात को समझना होता है। ऑप्शन सी में मुंतक़ी जहानत, ये दलील और हिसाब से रिलेटेड है, साइंसदान भी आएंगे इसमें, रियाज़ीदान भी आएंगे इसमें। ऑप्शन डी कुदरती, ये तो माहौल, कुदरती जहानत ये माहौल से रिलेटेड हो जाएगा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19 कोठारी कमीशन 1964 से 66, देखिए 66 इधर होना चाहिए था, थोड़ा सा लिखने में गलती होगी नाज़रीन, आप समझ जाइएगा। 1964 से 1966 ने ज़बान की तालीम के लिए कौन सी अहम सिफारिश की थी कोठारी कमीशन ने। ऑप्शन ए सिर्फ अंग्रेज़ी ज़रिए तालीम हो, ऑप्शन बी से लिसानी फार्मूला 3 लैंग्वेज फार्मूला, ऑप्शन सी
ज़ू लिसानी फार्मूला, बायलैंग्वेज जिसे कहेंगे। ऑप्शन डी संस्कृत को लाजमी करार देना। तो देखें कोठारी कमीशन ने से लिसानी फार्मूले को सिफारिश की थी। कोठारी कमीशन ने मुल्क में ज़बान की तदरीस को मुनज़्ज़म करने के लिए से लिसानी फार्मूले की सिफारिश की थी नाज़रीन। ऑप्शन ए में देखिए सिर्फ अंग्रेज़ी, ये कमीशन की सिफारिश नहीं थी। और सी में ज़ू लिसानी, ये नाकाफ़ी समझाया गया। जी नहीं, हो नहीं सकता ये। और संस्कृत को लाजमी करार देना, जी नहीं, ये इससे रिलेटेड नहीं है। सवाल नंबर 20, कौन सी ज़बान आइन की 8वीं शेड्यूल में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए उर्दू शामिल है, ऑप्शन बी अंग्रेज़ी, जी हाँ, ऑप्शन सी सिंधी, ऑप्शन डी नेपाली। देखें डी अंग्रेज़ी इसमें शामिल नहीं जी, क्योंकि उर्दू फहरिस्त के 22 नंबर पे, याद रखिएगा, सबसे लास्ट में उर्दू का नाम है 22वीं। सिंधी जो है 19वें नंबर पर है और डी जो है 14वें नंबर पे है। नेपाली 14वें नंबर पे है जी। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21, कुदरती या फितरी जहानत किन लोगों में नुमायाँ होती है? ऑप्शन ए किसान, माहिर हैवानात और नबातात, ऑप्शन बी रियाजीदां, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी डॉक्टर, ऑप्शन डी मैकेनिक। कुदरती या फितरी जहानत ये होती है किसान में, माहिर हैवानात और नबातात में, क्योंकि वो लोग जो कुदरती माहौल, पौधों और जानवरों में दिलचस्पी रखते हैं, इनकी बारीकियों को समझते हैं। ऑप्शन बी में रियाजीदा, ये मुंतकी जहानत होगी। ऑप्शन सी डॉक्टर, गरचे साइंस है लेकिन ये तशखीसी लॉजिकल ज़्यादा है। ऑप्शन डी मैकेनिक, मशीनी हरकती जहानत होगी, हर की जहानत कहलाएगी नाज़रीन। सवाल नंबर 22 समझेंगे। आइए नाज़रीन, सवाल नंबर 22, ज़बान की तदरीस में अफेजिया किस चीज़ में रुकावट बनता है? ऑप्शन ए सिर्फ लिखने में, ऑप्शन बी ज़बानी इजहार और तफहीम में, ऑप्शन सी देखने में, ऑप्शन डी चलने फिरने में। सवाल नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ज़बानी इजहार और तफहीम में, क्योंकि ये ज़बान का एक अर्ज़ा है जिसमें बच्चे सुनी हुई बात समझ नहीं पाता या रवानी से बोल नहीं पाता। ये दुश्वारी है, ये एफेजिया एक दुश्वारी है ज़बान की दुश्वारी है नाज़रीन, याद रखिएगा। ये हो सकता है इस बार सवाल पूछ ले, ज़्यादातर ये सवाल अभी तक नहीं पूछा गया एफेजिया के बारे में। ये ज़बान से रिलेटेड है, ये जिसमें बच्चे सुनी हुई बात या समझ नहीं पाता और रवानी से बोल नहीं पाता। ऑप्शन ए में जो लिखना है डिस्ग्राफिया है, ऑप्शन सी में देखना ये बसरी कमज़ोरी है, ऑप्शन डी चलना ये हरकी मसला है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23, शमूलियाती क्लासरूम में एक उस्ताद को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए निसाब की सख्ती से मुकम्मल करवाए, ऑप्शन बी बच्चों की इनफरादी ज़रूरियात के मुताबिक अपने तदरीसी तरीक़ों को तब्दील करें, ऑप्शन सी कमज़ोर बच्चों को नज़रअंदाज करें, ऑप्शन डी वालिदैन से शिकायत करे। बहुत ही आसान है, शमूलियाती तालीम में सबके लिए तालीम, इसका मकसद है सबके लिए तालीम, सबको एक जैसी तालीम मिलना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बच्चों की इनफरादी ज़रूरियात के मुताबिक अपने तदरीसी तरीक़ों को तब्दील करना चाहिए, क्योंकि शमूलियाती तालीम का तकाज़ा ये है कि उस्ताद बच्चे की इनफरादियत के मुताबिक तब्दील हों। ऑप्शन ए में दिया गया सख्त निसाब, ये लचकदार तालीम के ख़िलाफ़ है नाज़रीन। और ऑप्शन सी और डी में नज़रअंदाज करना, शिकायत करना एक अच्छे उस्ताद की खसूसियत नहीं है। आप समझ गए होंगे। आइए सवाल नंबर 24 समझते हैं। जिस्मानी हरकी ज़हानत रखने वाले बच्चे किस सरगर्मी में बेहतर सीख सकते हैं? ऑप्शन ए सिर्फ लेक्चर सुनकर, ऑप्शन बी खेल कूद, ड्रामा और अमली सरगर्मियों के ज़रिए, ऑप्शन सी खामोशी से किताब पढ़कर, ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, खेल कूद, ड्रामा और अमली सरगर्मियों के ज़रिए, क्योंकि इन बच्चों में जिस्मानी हरकत की सलाहियत ज़्यादा होती है, ये करके सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, प्ले डू लर्न, ये देखिए किताबें भी हैं हमारे स्कूल में, से बेहतर समझते हैं नाज़रीन ये लर्निंग बाय डूइंग से। आइए ऑप्शन नंबर ए का समझते हैं, लेक्चर, ये सुनने वालों के लिए, किसी किताब, खामोशी से किताब पढ़कर, ये पढ़ने वालों के लिए, और ऑप्शन डी नक्शा, देखने वालों के लिए, विजुअल के लिए जी। सवाल नंबर 25 और आज का आखिरी सवाल, कसी लिसानियत बच्चों में किस चीज़ को फ़रोग देती है? ऑप्शन ए अमली लचक, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी और रवादारी को, ऑप्शन बी तासुब को, ऑप्शन सी पढ़ाई से बेदारी को, ऑप्शन डी सिर्फ अंग्रेज़ी सीखने को। तो नाज़रीन देखिए सवाल नंबर 25 में कसी लिसानियत का फ़ायदा ये है कि ये इल्मी लचक और रवादारी को फ़रोग देती है,
ऑप्शन ए इसका सही होगा। एक से ज़्यादा ज़बानें जानने वाले बच्चे ज़्यादा लचकदार सोच रखते हैं और दूसरों की सखाफत का एहतराम करते हैं, ये ख़ास बात है इसकी। और ऑप्शन बी देखें, तासुब, ये बहुत ख़राब बात है। कसीर लिसानियत तासुब को ख़त्म करती है और बढ़ाती नहीं है बल्कि। और ऑप्शन सी बेजारी, ये दिलचस्पी पैदा करती है नाज़रीन, ये बेजारी पैदा नहीं करती। और ऑप्शन सी सिर्फ अंग्रेज़ी, ये महदूद सोच है। उम्मीद करूंगा नाज़रीन कि आज के ये जो 25 सवालात हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह आपको इम्तिहान में दुआ करूंगा कि इम्तिहान में इस तरह के सवालात आएँ और आप बआसानी सवालात के जवाब हल कर सकें। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले किसी मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।